और इस हादसे को लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री जहां अहमदाबाद पहुंचे हैं दुर्घटना स्थल पर वे मौजूद हैं और ऐसे में उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा यह दुर्घटना बेहद दुखद है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी मृतकों का आंकड़ा बताना मुश्किल है। विमान में विजय रूपाणी भी मौजूद थे। तो हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह दुर्घटना बेहद दुखद है और पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री का ये बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये दुर्घटना बेहद दुखद है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी मृतकों का आंकड़ा बताना थोड़ा नहीं उसका नहीं, बस सिर्फ यही है। थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ, हिंदी में उतना इंग्लिश में थोड़ा हिंदी थोड़ा हिंदी वो शब्दों का वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ अलग नहीं कर। यार ये नहीं, माइक नीचे रख। ओके सर, ये माइक राहुल नीचे आएंगे। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is. It is very British nationals very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल करता है. Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना काम. Thank you. स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरी घटना की बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि जो भी दोषी होगा पहले जांच होगी और जांच में जो भी निकलकर सामने आता है, उन्होंने यही कहा कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इस वजह से मौत का आंकड़ा
अभी देना स्पष्ट नहीं हो सकता कि कितने लोगों की मौत हुई है, चूंकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी इस पर पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से कि बस ये खबरें हैं कि लगभग जो 204 का एक जो नंबर दिया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस हादसे में 204 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आधिकारिक तौर पर कोई नंबर सामने नहीं आया है और यही केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने भी कहा कि अभी मौतों का जो आंकड़ा है वो स्पष्ट करना अभी संभव नहीं है और जांच होगी, जांच बैठेगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने जिस तरह से ये जानकारी दी कि उस दुर्घटना में जितने भी लोग घायल हुए हैं या जो भी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, सभी की जिंदगी बहुत कीमती है, सभी लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं। उनका जाना वाकई एक बहुत बड़ी क्षति है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन पीड़ित परिवारों के लिए बहुत बड़ी क्षति जिन्होंने अपने किसी अपनों को खोया उस घटना में। और ये एक ऐसी घटना है जो शायद ही कोई अब भूल सके, क्योंकि लोग खुशी से विदेश जा रहे थे, कोई अपने घर जा रहा था, कोई अपने बच्चों से मिलने जा रहा था, कोई पढ़ाई के सिलसिले में लंदन जा रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उड़ान भरते से कि ये उड़ान उनकी आखिरी उड़ान होगी और उड़ान भरते से कि उन्हें इस भयावह दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कि मौके पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर से जब निरीक्षण होगा, जांच बिठाई जाएगी, जांच दल बैठेगा और उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद सख्त कार्रवाई भी होगी। 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में तो ये इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और आज जो घटना घटी है उसको शायद ही कोई भुला सके, क्योंकि ये घटना अब आजीवन तक याद रखेगी। और जो क्षति आज हुई है, लोगों को, परिवारों को आज जो क्षति हुई है, वो क्षति शायद कभी पूरी ना हो सके। और किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी, ये अंदेशा भी नहीं था कि जो लोग आज हंसी खुशी इस फ्लाइट में बैठकर लंदन के लिए निकले हैं, ये उनकी आज आखिरी फ्लाइट होगी और उन्हें ये दर्दनाक मौत मिलेगी।